Now, today we are discussing about the law of polygon of addition of vector. Of addition of vector. If the number of vectors represented along the side of any polygon then the resultant of these vectors represented by the last side of polygon in opposite direction. Opposite direction में लेंगे हम. Suppose it is the polygon. It represents O, A, B, C, D and E. Let vector represented consecutively along the side OA is equal to A, AB equal to B, BC equal to C and CD equal to D and DE equal to E. Okay, now we have to prove this one. It's the resultant represented by the last side. So now we join O and A. So now OB equal to OA plus AB and it is equal to A plus B. Equation number 1. Now we take we join O to C. It is the A plus B and it is C. Again we take OA plus BC. OB plus BC. We get OC. It means OC equal to A plus B plus C. Again we join O to D. OC is A plus B plus C. So we have OC plus CD and it is equal to OD. That is OD equal to A plus B plus C plus D. It is the A plus B plus C plus D. It is equation number 3. Again we take OD plus DC equal to OE. Therefore, OE is equal to A plus B plus C plus D plus E and it is R. And OE is equal to R. So OE is the last side. That is OE is last side in opposite direction. So it is proved. Law of polygon is if the number of vectors represented along the side, any side of polygon, then its resultant is always represented by the last side, and it is proved by this one. Okay, so it is the all three law of addition. Now we come to how to find the subtraction of two vectors. Subtraction of two vectors.
Now we have a subtraction of two vector. In subtraction of vector, we have to find a minus b. So it can be written as a plus minus b. It means we can add the negative vector of second vector, then we get a minus b. Suppose we have the two vector. It is the vector A, it is the vector B, it is B. So we are taking negative vector of this one. It is the negative vector of B minus B. It is the B dash. Okay? It is the angle between the vector is theta and it is pi minus theta. And we get the resultant of these two is R. Okay? हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिया लेट ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू ए, इट इज द वैक्टर ए, एंड ओ बी इक्वल टू वैक्टर बी. Also we take also OB dash is minus B. Direction is opposite but they are in same direct. They have a equal magnitude. So now therefore OA vector plus OB dash vector is equal to OC vector as law of addition of vector. Law of addition of vector. Law of parallelogram, I mean. Okay? So OC is what? OC is equal to R equal to A plus minus B vector, and we get this one. So magnitude of R. Now we have to find the magnitude. Magnitude of R. R square equal to A square plus minus B square plus 2A minus B. We are taking the magnitude. So A square plus B square plus 2AB cos pi minus theta is there. So we have a square plus B square minus 2AB cos theta, because cos pi minus theta is equal to minus cos theta. So resultant R is equal to A square plus B square minus 2AB cos theta. और ये एक्सप्रेशन हमने देखा था रिलेटिव वेलोसिटी में, जब हम ए माइनस वी भी निकालते थे तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos theta, and direction, that is the alpha is equal to B sin pi minus theta upon A plus B cos pi minus theta. B को ये नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारा नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड सेम होता है. हम यहाँ पे ले रहे हैं B cos theta. So we have B sin theta upon A minus B cos theta. So it is the tan alpha, that is the direction of, it is the direction of resultant. ठीक है, तो ये था हमारा सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का. इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस होते हैं. एक कोई टिपिकल क्वेश्चंस अभी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ.
ठीक है, बाकी इसमें डायरेक्ट फार्मूला ए और बी गिवन होगा, थीटा की वैल्यू आप रख के फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर फोर्सेस के क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो इनके न्यूमेरिकल्स बताने से पहले हम एक टॉपिक और कर लें, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, फिर हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपको हम इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, resolution of vector. Okay, now अभी तक तो हमने किया था कि दो वेक्टर को ऐड किया था, अभी हम दो वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं x और y के अलोंग। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, हम इसके अलोंग इसको ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, वी जस्ट एज्यूम वी ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, इट इज बी, ये मान लेते हैं हम लोग सी। इसको हमने ले लिया ए एक्स और इसको ले लिया हमने ए वाई। अब ये ए एक्स और ए वाई, इफ दीज टू आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए, देन देयर मस्ट बी ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। यदि ये इसका कंपोनेंट है तो इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। ये हम पहले प्रूव कर लेते हैं। हम ले रहे हैं पहले इन टू डायमेंशन, पहला केस हम ले रहे हैं इन टू डायमेंशन। इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में ओ ए वैक्टर is equal to vector A. Let OC is the AX and OB is equal to AY. Now from the diagram, AC equal to OB and AC parallel to OB, therefore AC equal to OB and it is AY. Okay, by addition OC vector plus CA vector, not AC, CA vector is equal to ओ ए वैक्टर। ये दोनों कॉमन होने चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। तो ये आ गया हमारा ए एक्स प्लस ए वाई, ये इक्वल टू वैक्टर ए। तो इसका मतलब हैंस ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ए को हम ऐसे लिख दें, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये हमारा कंपोनेंट्स होता है ए एक्स और ए वाई। ठीक है, ये एक्स के लॉन्ग है इसलिए आई लिया और ये वाई के लॉन्ग है इसलिए जे ले लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ से अपने को वैल्यू मालूम है ओ ए का, तो ए सी अपॉन ओ ए को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो ए सी हमारा क्या है, ए वाई है, तो यह आ जाएगा ए
साइन थीटा ए से की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से तो ये आ गया हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर दैट इज ए, ये तो हमारा रिलेशन आ गया। ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ए इक्वल टू आ गया हमारे पास ए एक्स स्क्वायर। अब ए एक्स और ए वाई की वैल्यू हम ए के टर्म्स में कैसे निकालेंगे? ए वाई हो गया हमारा ए साइन थीटा, इसी तरह हमारे पास है ओ सी अपॉन ओ ए, ये हमारा है कॉस थीटा। तो ओ सी इक्वल टू हमारे ओ सी इक्वल टू क्या निकल गया? ए कॉस थीटा। तो इस तरह से कभी भी हम कोई वेक्टर को लेंगे तो दिस वेक्टर इज ऑलवेज ब्रोकन इन टू कंपोनेंट अलोंग द एक्स वाई प्लेन। तो ये हमारा x के अलोंग हो जाएगा a cos थीटा और ये हमेशा होगा a sin थीटा। तो आगे के जो चैप्टर्स है उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एक्चुअली जो हमारा वेक्टर होता है, वेक्टर एक मैथमेटिकल टूल्स है जिससे हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं। तो a cos थीटा एंड a sin थीटा ही दिया। इसी तरह मान लो अपने पास यदि मान लो इस तरह दिया हुआ है कि थीटा एंगल यहाँ से बन रहा है, तब जिस एक्सिस के साथ थीटा बनता है हमेशा कॉस थीटा उधर होगा और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा का कंपोनेंट होता है। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें तो हमें वेक्टर का डायरेक्शन मालूम हो जाएगा tan थीटा दैट इज ए वाई अपॉन ए एक्स। तो किसी भी वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में यदि हमें वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना था तो हमने पहले ही बता दिया था आपको, क्या आएगा? ए एक्स आई ए वाई जे अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इससे हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा है कि किसी भी वेक्टर को हम लोग जब दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं तो हमारा x के अलोंग ए कॉस थीटा होगा और y के अलोंग हमारा ए साइन थीटा होता है। यहाँ भी ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आ गया, ए इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, वैक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई। तो ये हमारा पूरा निकल गया और वो हमारा tan थीटा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। दो वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लेते हैं 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में तो ए एक्स ए वाई आ गया, 3 डायमेंशन में ए जेड कैसे आता है? इन 3 डायमेंशन in 3 dimension. थ्री डायमेंशन। ठीक है, अब 3 डायमेंशन में हमें लेना है। तो 3 डायमेंशन में लेने के लिए हम क्या करें कि यदि मान लो हमारा 3 डायमेंशन लेना है, ये 3 एक्सिस है, ये हमारा 3 एक्सिस हम ले लेते हैं, ये x और ये z, ये 3 एक्सिस हो गए हमारे पास। अब हम किसी वेक्टर को लेते हैं इसके साथ। मान लो हमने यहाँ से ले लिया एक वेक्टर, ठीक है, यहाँ से लिया एक वेक्टर को, ये 3 एक्सिस हो गया हमारे पास। ठीक है, और एक वेक्टर है हमारा ऐसे, ऐसे लिए देखो x y और ये ले लिया हमने z। ये वेक्टर हमारा यहाँ से है, ऐसे हमारा वेक्टर a है z के अलोंग। तो अब हम इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसका जो इमेज यहाँ बनेगा इसका परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ होगा और यहाँ से एक परपेंडिकुलर और एक यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा x और y का कंपोनेंट निकल जाएगा। और यहाँ से ये जो हमने लिया है यहाँ से एक पैरेलल लाइन इस पर ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा z एक्सिस होगा। तो हम इसमें यही लेना चाहते हैं। ठीक है, तो देख लो आप,
ये हमारा कोई वेक्टर है ए, एक्स वाई जेड 3 लाइन हो गया, ये हमारा नहीं चल रहा है, ठीक है। ये हमारा एक वेक्टर है ए, हमने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए डैश। अब ये भी बताया था कि जैसे हमारे ये वेक्टर जेड है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये तो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ही होगा ना, तो हम यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें एम, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एन, ठीक है। ये हो गया हमारा ए वाई, और ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक ए एक्स। इसको यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और इसके पैरेलल ये जो हमारी जेड एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया ओ ए डैश के, ये हमारा ए डैश है, इसके पैरेलल हमने यहाँ पे किया तो ये आ गया हमारा पूरा ए जेड। अब ये तीनों यदि ए का कंपोनेंट है, ये जो हमारा वेक्टर ए है, इस ए का यदि ये कंपोनेंट है तीनों, तो हमारा ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है। लेट ओ ए इज इक्वल टू ए इन एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है। नाउ we draw a perpendicular A dash on XY plane, XY plane पे डाल दिया हमने। Also draw A dash M and A dash N on OX and OY axis. Let OM is AX and ON is equal to AY, ठीक है। Join OA dash OA dash and draw perpendicular draw a parallel line AP on OZ as parallel to OA dash. Let OP equal to AZ. Okay. Now in OA dash N by addition क्या आएगा? ओ ए डैश इक्वल टू ओ एम प्लस ए डैश एम, बट ए डैश एम इज इक्वल टू ओ एन, दैट इज ए वाई। सो ओ ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस ax plus ay. इट इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये हमारा परपेंडिकुलर है, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए डैश ए इज इक्वल टू ओ ए। अगेन इन ओ ए डैश ए
ओ डैश ए। अब देखो यहाँ पे ओ ए डैश वैक्टर इक्वल टू ओ ए डैश वैक्टर प्लस ए डैश ए वैक्टर इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर। ठीक है, ओ ए डैश हमारे कितना है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, और ये हमारा है ओ ए वैक्टर यानी वैक्टर ए। देख लो, सिंस ए डैश ए इज इक्वल टू ओ पी एंड इट इज इक्वल टू ए जेड, तो इस तरह से हमारा ये तीनों कंपोनेंट आ गया। एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटेन एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। So it is the component in 3 dimension, ax, ay and az. Again we repeat it now. OA with a vector, we draw a perpendicular AA dash on xy plane. We again draw the perpendicular A dash M on OX, it is the OX axis. And we draw the another perpendicular on OY. So A dash N is there. So now we join OA dash and we take the parallel OAP. So OP is parallel and equal to AA dash. So it is the AZ, then it is also AZ. It is also the AZ. Okay. Now we add this vector plus this vector. It is also AY. M A dash, M A dash, not A dash, M A dash. Okay, so we get the AX plus AY is equal to OA dash, but OA dash plus A dash A is equal to OA. So we get the 3 dimension. Now we have to find the magnitude of this vector. Magnitude of this vector, these components. Magnitude of this vector. Now in triangle, it is a perpendicular. In triangle O M A dash, O A dash square is equal to O M square plus M A dash square, and it is equal to A X square plus A Y square. So it is the A square. A equal to under root A X square plus A Y square. Okay. So we get this one, O A dash square, O A dash square, we get O A dash square as, it is the equation number 1 now. Now in a triangle, O A dash A, OA square is equal to OA dash square plus A dash A का स्क्वायर। ये आ गया हमारे A स्क्वायर, ओ A डैश स्क्वायर आ गया, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया A इक्वल टू AX स्क्वायर plus AY square plus AZ square. It is the magnitude, and direction we can take in a different along the different axes. It is AX, okay, we take the alpha, we take the beta, it is the beta along